अबुधाबी में ओआईसी इजलास से खिताब करते हुए वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि ओआईसी मुल्कों से हिंदुस्तान के करीबी और देरीना रिश्ते हैं। हिंदुस्तान की बात सुनने के लिए सुषमा स्वराज ने ओआईसी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी इलाके में अदम इस्तेहकाम पैदा करती है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की कसीरुल लिसानी आबादी है और हिंदुस्तानी मुस्लिम नौजवान शिद्दत पसंदी से मुतासिर नहीं हैं। دماؤهم نتيجة جرائم ارتكبتها جماعات أو أفراد كرسوا كل طاقاتهم لتنفيذ أجندات هدامة وبعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي الحنيف الذي يزعمون تمثيلهم له. إن تواصل الجرائم الإرهابية والعنيفة لبلورة معالجة شاملة تأخذ بالاعتبار كافة الأبعاد الأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفكرية، وتركز على كافة أشكال التمييز والتطرف والفهم الخاطئ. नाजरीन, अबुधाबी में ओआईसी इजलास से खिताब करते हुए वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने खिताब किया। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि ओआईसी मुल्कों से हिंदुस्तान के करीबी और देरीना रिश्ते हैं। हिंदुस्तान की बात सुनने के लिए सुषमा स्वराज ने ओआईसी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी इलाके में अदम इस्तेहकाम पैदा करती है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की कसीर आबादी है और हिंदुस्तानी मुस्लिम नौजवान शिद्दत पसंदी से मुतासिर नहीं है। आज आपको बता दें कि ओआईसी इजलास में वजीर खारजा सुषमा स्वराज को बहैसियत मेहमान खसूसी मदऊ किया गया था। ओआईसी इजलास में वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी इलाके में अदम इस्तेहकाम पैदा करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी दुनिया के लिए खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। The newly elected chair of OIC and the foreign minister of UAE, and we are witnessing the terrible daily destruction in senseless terrorist violence. It is destroying lives, destabilizing regions, and putting the world at great peril. The reach of terror is growing, its lethality is increasing, and the toll it is taking is rising. In the rich diversity of Southeast Asia, in West Asia and the Gulf, in North Africa and Sahel region, in Europe and North America, in Afghanistan, Bangladesh and India, we see the terrible face of terror. Terrorism and extremism bear different names and labels. It uses diverse causes, but in each case, it is driven by distortion of religion and a misguided belief in its power to succeed. The fight against terrorism is not a confrontation against any religion. It cannot be. Your Highness and Excellencies, India has always embraced and found it easy to embrace pluralism since it is embedded in the oldest Sanskrit religious text, the Rig Veda. As much engagement as India's relationship with UAE and indeed with the entire Gulf and West Asia region, it is a return of history. In Central Asia, where human aspirations linked us across the mightiest mountains since ancient times, we are rebuilding our relationship along new routes of possibilities. We do this especially with and through Iran, a country with which we not only share civilizational and cultural links, but a partnership that is vital for stability and prosperity in our region. In West Asia, our solidarity with the aspirations of the Palestinian people have remained unwavering. Our international journey was often pursued in close partnership with Egypt. Iraq and India have stood together in our triumphs and trials. We have with great admiration supported Jordan's efforts in strengthening the voices of moderation and building bridges of understanding between faiths.
नाज़रीन, ओआईसी इजलास से वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने खिताब किया। मज़ीद जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि ओआईसी में सुषमा स्वराज की जो पार्टिसिपेशन है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए, ओआईसी में जो भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो पार्टिसिपेट किया है और वो वहाँ पर मुख्य अतिथि थी, इस पर चीफ गेस्ट थी, अपने आप में एक बड़ी बात है ये भारत के लिए, क्योंकि इससे पहले कभी भारत शामिल नहीं हुआ है इस तरह के इस मंच पर, इस स्टेज पे कभी भारत शामिल नहीं हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज इस मौके पर जबकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मंच का इस्तेमाल किया, आज से कुछ दिन पहले इसी मंच ने भारत की कार्रवाई की निंदा की थी। जो भारत ने पाकिस्तान में जो जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर है उसको जो तबाह किया एयर स्ट्राइक के जरिए, तो यही वो मंच है ओआईसी जिसने भारत की इस कार्रवाई की निंदा की थी और ये कहा था कि जो फाउंडर स्टेट है पाकिस्तान, उसके सॉवरेनिटी का ख्याल रखा जाना चाहिए था और भारत की इस कार्रवाई की निंदा की थी। लेकिन आज इसी मंच से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत का रुख साफ कर दिया है और भारत क्या कहना चाहता है वो विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत की मंशा क्या है, कि भारत नहीं चाहता है किसी पड़ोसी मुल्क पर इस तरह हमला करना, लेकिन जिस तरह एयर स्ट्राइक किया गया उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई था। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो दिलचस्प बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि शाह महमूद कुरैशी ने वो क्योंकि मेंबर कंट्री है पाकिस्तान, इस्लामिक देश है पाकिस्तान, इसलिए शाह महमूद कुरैशी को भी इस बैठक में शामिल होना था विदेश मंत्रियों की। लेकिन अबू धाबी नहीं पहुंचे शाह महमूद कुरैशी और आज बयान जारी करके कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस बैठक में शामिल हुई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर, जहां पर भारत का जो लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है, वहीं ऐसे में पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है। चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म साक की बात करें या फिर अब एक इस्लामिक देशों का जो ये 57 कंट्रीज का जो ये ग्रुपिंग है ओआईसी, वहां पर भी अब लग रहा है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। पाकिस्तान की धमकियों को दरकिनार करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का वहां पर जोरदार स्वागत हुआ। जी, जैसा कि अपने खिताब में सुषमा स्वराज ने कई सारे बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम नौजवान हैं उनका रुझान शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं है, तो जो और लड़ाई है वो टेररिज्म के खिलाफ है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। देखिए, जाहिर तौर पर भारत ने उस मंच का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया आज, जहां पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तमाम ये बातें रखी हैं पूरी दुनिया के सामने और खासतौर से उन 57 कंट्रीज के सामने जो इस मंच की मेंबर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस मंच ने अब से कुछ दिन पहले कंडेम की थी भारत के कार्रवाई को, आज वही मंच का इस्तेमाल करते हुए भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और साफ कर दिया है कि भारत की मंशा क्या है। और ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी जाती है, वहीं भारत को तरजीह दी जाती है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री एसएम कुरैशी ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर भारतीय विदेश मंत्री वहां जाएंगी तो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ। तो वही हुआ कि पाकिस्तान आज इसमें शामिल नहीं हुआ है, उसने बाइकआउट किया है इस मीटिंग का। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्पेशल गेस्ट के तौर पर आज इस मंच को एड्रेस किया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, पहले जो ममालिक पाकिस्तान की साइड ले रहे थे वो अब हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि साफ तौर पर जैसे कि आपने बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने बोला था कि वो नहीं आएंगे इस इजलास में अगर सुषमा स्वराज ने पार्टिसिपेट किया तो, लेकिन बावजूद इसके सुषमा स्वराज को मदऊ किया गया बतौर मेहमान खसूसी। तो क्या एक इक्वेशन जो इस्लामिक ममालिक के साथ है हिंदुस्तान का बदलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई के जो संबंध है भारत के साथ, वो आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय से लगातार वो संबंध काफ़ी मजबूत हो रहे हैं, काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं भारत और यूएई के संबंध। ऐसे में ये भी देखने को मिला था कि पिछले कुछ महीनों में लगातार यूएई से जो भी भगोड़ा है, जो भी आतंकी है, उसको यूएई ने वापस भारत को लौटाया है। तो ऐसे में जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, और भारत एक ऐसा देश है जो कि आपको ऑफर करता है तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट्स के लिए और अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड के लिए। भारत एक बड़ा बाजार भी है, बड़ा मार्केट है और भारत एक जिम्मेदार देश है। ऐसे में जहां पर $600 बिलियन की इकोनॉमी हो और वही सामने $6 बिलियन की इकोनॉमी पाकिस्तान हो, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान सिर्फ
मांगने के लिए ऐसे कंट्रीज के पास जाता है, और भारत जहां पर जाकर ऑफर करता है ट्रेड के लिए, रिश्तों को और बेहतर करने के लिए। वहीं ये भी बात कहें कि पाकिस्तान ने लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल किया है भारत के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ। तो ऐसे में जाहिर तौर पर यह दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद का इस्तेमाल करता है अपने पड़ोसियों के खिलाफ। तो ऐसे में यह भी साफ हो जाता है कि भारत की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से है, और वो सभी पड़ोसी मुल्कों से भी रिश्ते अच्छे चाहता है, लेकिन वो आतंकवाद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो शैलेंद्र, क्या समझा जाए कि जैसा कि हिंदुस्तान ने कहा था लगातार कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, तो अब जबकि इस्लामिक कंट्रीज ने भी कहीं ना कहीं तरजीह नहीं दे रहा है पाकिस्तान को, तो वो सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक और मंच है जहां पर एक बार फिर पाकिस्तान अलग थलग अब पड़ता नजर आ रहा है। इससे पहले आपको याद दिलाएं कि अमेरिका ने भी भारत की कार्रवाई को एंटी टेरर एक्शन कहा था, यानी आतंकवाद की विरुद्ध उठाया हुआ एक कड़ा कदम कहा था। वहीं इससे पहले सार्क सम्मेलन को लेकर भी चर्चा हुई थी। सार्क जो पड़ोसी मुल्क हैं भारत के और पाकिस्तान के, उसकी एक बैठक होनी थी अब से 2 साल पहले पाकिस्तान में, लेकिन आतंकी हमले के बाद इसको रद्द करना पड़ा, क्योंकि तमाम मुल्कों ने, जो सार्क कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा था कि हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, जिसके चलते पाकिस्तान को ये बैठक रद्द करनी पड़ी थी। और अब ये एक और ऐसा मंच है जो कहीं ना कहीं लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता था, लेकिन आज वो लगता है उसने पाकिस्तान को भी अनदेखा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो रवैया रहा है आतंकवाद को लेकर, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसे में तमाम जो मुल्क हैं वो मजबूर हैं पाकिस्तान से अपना रिश्ता तोड़ने के लिए। जी शैलेंद्र, और जैसा कि हिंदुस्तान और मिडिल ईस्ट यूएई को लेकर के जो ताल्लुकात में बेहतरी लाने की बात की गई है इस इजलास में, उसको लेकर क्या कुछ वजाहत है? देखिए, ये साफ है कि भारत तमाम मुल्कों से, खासतौर से मोदी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो मोदी गवर्नमेंट ने आते साथ ये कहा था कि हम सभी कंट्रीज से, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो या कितनी छोटी क्यों ना हो, हम सभी मुल्कों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत की गई थी सार्क कंट्री से। जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी आज से करीब 5 साल पहले, तो उस वक्त सार्क कंट्रीज के तमाम जो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको यहाँ न्योता दिया गया था, वो शामिल हुए थे। और वही कोशिश लगातार रही है सरकार की कि छोटी से छोटी कंट्री में भी हमारा मिशन होना चाहिए और हमारे से उनके संबंध अच्छे होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने खुद कई मुल्कों का दौरा भी किया है। तो ऐसे में जो इस्लामिक कंट्रीज का जो ये ग्रुपिंग है OIC, उसके साथ भी संबंध लगातार अच्छे करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन लगातार कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के कहने पे आकर, पाकिस्तान के बहकावे में आकर OIC की तरफ से इस तरह के बयान दिए जाते रहे हैं कश्मीर को लेकर, और जिनको भारत लगातार साल दर साल उनको ठुकराता रहा है। लेकिन आज जिस तरह से अब माहौल बदला नजर आ रहा है, पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से भारत ने इस पूरे मामले को दुनिया के सामने रखा और ये बताया कि किस तरह पाकिस्तान ऐसे हमले कराने में कामयाब होता है, और बाद में ये कहता है कि हम आतंकवाद को समर्थन नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे में दुनिया भर के सामने अब ये सच सामने आ चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो ऐसे में हर कोई अब पाकिस्तान से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत के लिए ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो उन तमाम मुल्कों के साथ अच्छे संबंध अपने बना सकता है और उनको और मजबूत कर सकता है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।